to our channel and subscribe our channel and press the bell icon so that you can receive each and every updates of IELTS and PT lectures. Today I'm going to teach you the basics of reading, which should be remembered before doing the reading module, as most of the students have problem in the reading module. So here are some tips and tricks to crack reading. Okay, let's start the video. The first question is that what is the purpose of reading module in IELTS? तो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को who are doing IELTS उनको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि रीडिंग मॉड्यूल का पर्पस क्या है. Why the examiners have added the reading module in IELTS? Basically we have 4 modules that are listening, reading, speaking and writing, and one of them is a reading module. सो अगर आपको ये पता है कि what is the purpose of the reading module, you can easily get maximum score in your reading module. So let's discuss what is the purpose of reading module. The purpose of the reading module in IELTS is that are you able to understand English language by reading it or not? So simply I have highlighted the word as well, that is understand. So they are not going to check that are you able to read or not, they are going to check that are you able to understand the language or not by reading it. So basically आपको सिर्फ read नहीं करना है reading में, as the name is reading, you have to understand the language to get the score in reading module. So reading means are you able to understand English language by reading it or not. So they will trap you in each and every question by rephrase the word so that कि आप कितना उस language को understand कर सकते हो. So try to understand the language as much as you can. The next thing is there are 8 type of questions in reading. The first is sentence completion. The second is diagram or flow chart. Third is answer short questions, label diagram, matching headings, paragraph containing MCQ, true, false and not given. सो बेसिकली हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस को करने के अपने अलग मेथड हैं. यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट सिंगल मेथड ऑन ऑल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आप सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हो तो आपको अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप डायग्राम फ्लो चार्ट कर रहे हो अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा. सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द मेथड विच इज सुटेबल फॉर दैट क्वेश्चन टाइप. फॉर एग्जाम्पल I have written a one word passage order. So I have written that sentence completion will be in a passage order, diagram flow chart may not in a passage order, answer short questions in passage order, label diagram grouped together, matching headings not in passage order, paragraph containing not in passage order, MCQs passage order, true false not given passage order. So what is the passage order? I will explain in the next slide. Basically सेंटेंस कंप्लीशन हमें पैसेज ऑर्डर में मिलेंगे, मीन्स हमें सीक्वेंस में मिलेंगे, लाइन वाइज मिलेंगे. अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ ए में मिला है देन इट्स 99% चांसेस दैट कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सेंटेंस कंप्लीशन का वो फर्स्ट के बिलो ही मिलेगा. सेकंड जो डायग्राम्स रहते हैं वो शायद पैसेज ऑर्डर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. एंड बिल्कुल आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आर इन पैसेज ऑर्डर, ये भी पैसेज ऑर्डर में रहेंगे. जो लेबल डायग्राम रहता है दैट आर ग्रुप टुगेदर इन द सेंस कि वो आपको एक सिंगल पैराग्राफ में मिलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई डायग्राम आपकी रीडिंग में मिला हुआ है आपको और आपको उसके कीवर्ड अगर सी पैराग्राफ में मिल रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि जो भी आपको सी पैराग्राफ में कीवर्ड मिले, जितने भी क्वेश्चंस हैं लेबल डायग्राम वाले वो सारे ही आपको सी पैराग्राफ में मिलेंगे. बट वो पैसेज ऑर्डर में भी हो सकते हैं और पैसेज ऑर्डर में नहीं भी हो सकते. सो दे ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेंस दे विल यूज कनेक्टर्स एंड हाउएवर. बट सो वो एंड और हाउएवर जैसे कनेक्टर्स को यूज करके सीक्वेंस में भी आंसर्स को दे सकते हैं और सीक्वेंस में नहीं भी रख सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड ग्रुप टुगेदर इंफॉर्मेशन. मैचिंग हेडिंग्स पैसेज ऑर्डर में नहीं रहेंगी, पैराग्राफ कंटेनिंग भी नहीं होंगे. MCQs आर इन पैसेज ऑर्डर, बिल्कुल वो कॉन्टिन्यूटी में ही मिलते हैं हमेशा. एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन जो रहते हैं दैट विल इन पैसेज ऑर्डर, वो कॉन्टिन्यूटी में ही मिलेंगे. फॉर डिटेल आई एम गोइंग टू टेल यू मोर. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. For example, I have some questions like 6, 7, 8 and these are the yes, no, not given questions. So let's check कि ये पैसेज ऑर्डर होता क्या है.
अगर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको जो येस नो नॉट गिवन मिलने चाहिए, दैट शुड बी इन द सीक्वेंस. सो ये होना चाहिए कि 6 हमें अगर ए में मिल रहा है तो 7 उससे नीचे मिलना चाहिए. अगर 7 बी में मिल रहा है तो 8 हमें उससे नीचे मिलना चाहिए. लेट्स हैव अ लुक, चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या ऐसा होता है रीडिंग में. ओके, एज यू कैन सी दैट क्लियरली वी हैव द सिक्स्थ आंसर in C paragraph. So in the C paragraph we have found our 6 answer. So next जो था that was a 7 and these are yes no not given. It means जो 6 क्वेश्चन मेरे को C पैराग्राफ की थर्ड लाइन में मिला है, अगर मेरे को 7 का आंसर चाहिए आई हैव टू लुक फर्दर. मेरे को 6 क्वेश्चन से नीचे फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेट्स चेक कि इससे नीचे मेरे को 7 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. Yes, as you can see in the D paragraph I have found my 7 answer, and in the E paragraph I have found, in the D paragraph as you can see here it's a D paragraph and 7 answer. It's an E paragraph and 8 and 9 answer. These are the true, false and not given. So it is clear that जितने भी क्वेश्चन टाइप्स रहेंगे उनके अपने मेथड्स रहेंगे. अगर वो पैसेज ऑर्डर में हैं तो हमेशा ही उनको सीक्वेंस में फाइंड आउट करने की ट्राई करो. उससे ऊपर ढूंढना या उससे ज़्यादा आगे जाके ढूंढना इज़ नॉट गुड. सो जितने भी क्वेश्चन टाइप लिखे हुए हैं फाइंड दैट क्वेश्चन टाइप अकॉर्डिंग टू देयर मेथड. अगर वो पैसेज ऑर्डर में है तो उसको सीक्वेंस में ही ढूंढो. सो जो मेरे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चन थे दैट वाज 6, 7 एंड 8 एंड दीज 3 क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंस. हमने 6 क्वेश्चन सी पैराग्राफ में फाइंड आउट किया था. हमें जो 7 क्वेश्चन है वो डी पैराग्राफ में मिला एंड जो 8 क्वेश्चन था वो हमें पैराग्राफ ई में मिला. सो इट इज़ क्लियर कि जो जितने भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, दीज आर इन पैसेज ऑर्डर. द नेक्स्ट थिंग इज most important thing, always try to understand the question then select keyword. I have written one word, I always try to understand the question. So it's a very important criteria. Reading को करने से पहले, as you all know that we have 40 questions and most of the student puzzle हो जाते हैं कि हम सिर्फ 2 पैसेज कर पाते हैं, हमसे थर्ड पैसेज नहीं हो रहा है. सो उसका एक सिंपल सा रीज़न ये रहता है, यू फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं एंड यू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो इट्स एडवाइस दैट कि जब कभी भी आप क्वेश्चंस करो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जो आपको क्वेश्चन समझ आया है देन सिलेक्ट द कीवर्ड्स एंड डू स्किमिंग एंड स्कैनिंग. अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं प्लीज स्किप दैट क्वेश्चंस. उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को स्किप करो, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड वन थिंग मोर, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि अगर वो फर्स्ट पैसेज कर रहे हैं एंड दे फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट तो उनको लगता है कि ये पैसेज पूरा ही डिफिकल्ट है एंड दे लीव द पैसेज. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. डोंट लीव द पैसेज इमीडिएट. इट कैन बी हैपन दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जो आपको नहीं मिल रहा है, बट इट्स नॉट 100% ट्रू दैट कि पूरा पैसेज ही आपको नहीं मिलने वाला है. सो ट्राई टू फाइंड द अदर क्वेश्चन ऑफ पैसेज 1. 40 क्वेश्चन में से क्वेश्चन टाइप्स आर डिफिकल्ट. क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, पैराग्राफ डिफिकल्ट या फिर पैसेज डिफिकल्ट नहीं होते हैं. सो डोंट स्किप द पैसेजेस. जस्ट यू कैन डू वन थिंग. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है जस्ट स्किप द क्वेश्चंस एंड मूव अहेड. उस क्वेश्चन से आगे मूव करते रहो. अगर आप एक क्वेश्चन पे मोर देन 5 मिनट या इवन मोर देन 2 मिनट भी अगर आप वेस्ट करते हो, एज यू नो वी हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर अ सिंगल पैसेज. सो इसी वजह से ज़्यादातर बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है, मैम हमारे पास टाइम नहीं बचता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है रीडिंग में, हम सिर्फ 2 पैसेज कर पाते हैं. तो इसको अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो प्लीज़ डू दैट क्वेश्चन जो आपको समझ आए हैं. सेलेक्ट द कीवर्ड एंड डू द स्किमिंग एंड स्कैनिंग. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच कीवर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें अब कीवर्ड कौन से सिलेक्ट करने चाहिए. सो द कीवर्ड्स शुड बी सच एज नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. Subject is the starting of the question and object is the end of the questions. So please don't
चूज द कीवर्ड दैट आर वर्ब्स। जितने भी वर्ब्स रहती हैं आप उनको कीवर्ड नहीं ले सकते हो। उसका एक रीज़न ये रहता है कि वर्ब आर रीफ्रेज्ड, वर्ब्स को वो रीफ्रेज करते हैं। अगर बेसिकली आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एल्बर्ट वेंट टू अमेरिका। अगर मैं इसमें से वेंट वर्ड उठाती हूँ एज अ कीवर्ड, तो मे बी अगर मैं पैसेज में ढूंढने जाऊँ तो मेरे को वो मिले ही ना, बिकॉज दे कैन रीफ्रेज इट बाय कम्यूट, बाय विजिटेड। सो आई हैव टू टेक माई कीवर्ड सब्जेक्ट दैट वॉज मिस्टर एल्बर्ट एंड द ऑब्जेक्ट दैट वॉज अमेरिका. So you should select your keyword that are noun, that are subject or that are object. Finally, जो रीडिंग की स्टार्टिंग रहेगी, जो रीडिंग को अगर आप बिल्कुल न्यू हो आइल्स में और आप रीडिंग अभी अभी स्टार्ट की है आपने, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ों को माइंड में ज़रूर रखना प्लीज़. द फर्स्ट थिंग इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सेकेंड इज़ सिलेक्ट कीवर्ड्स. वो मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं. स्किमिंग एंड स्कैनिंग. अभी स्किमिंग एंड स्कैनिंग आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप करना है. अगर वो पैसेज ऑर्डर में है, यू शुड डू योर स्किमिंग एंड स्कैनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑर्डर, कि उसी से नीचे मिलेंगे. एंड आई विल मेक एन वीडियो ऑन स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन डिटेल ऑल्सो. द लास्ट इज फाइंड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द गिवन मेथड. अगेन जो इतने भी मैंने मेथड्स दिए थे कि वो पैसेज ऑर्डर में रहेंगे, वो ग्रुप टुगेदर रहेगा, वो पैसेज ऑर्डर में नहीं रहेंगे. फॉलो दैट मेथड्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेवर डू रीडिंग इन कॉन्टिन्यूटी. डू दैट क्वेश्चंस विच आर मोर अंडरस्टूड टू यू फर्स्ट टू सेव टाइम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है हमेशा ही, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हमेशा उनकी यही कंप्लेन रहती है कि मैम हमारे पास टाइम नहीं बचता है. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्लीज़ वो क्वेश्चंस करने शुरू करो जो आपको समझ आ रहे हैं. जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं वो बाद में करो. एज जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में नहीं समझ आया, वो आप चाहे 5 मिनट उस पर लगा दो, उस टाइम पे वो नहीं समझ आएगा. मे बी आप अगर क्वेश्चन करते जा रहे हो तो आफ्टर 30 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, जो 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, शायद वो बाद में आप रिलैक्स होकर आराम से कर सकते हो. अगर आपने एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किया है तो बाकी क्वेश्चंस भी आप जल्दी जल्दी में करोगे, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. और जल्दी जल्दी में अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सिंपली वो गलत भी जाएंगे. सो डू द क्वेश्चंस जो समझ आ रहे हैं. जो नहीं समझ आ रहे हैं उनको थोड़ा बाद में करना, एंड यू विल गेट टाइम. अगर आप ऐसे करके चलते हो कि जो आपको समझ आ रहा है वो आप कर रहे हो, जो नहीं समझ आ रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट टाइम टू डू दैट क्वेश्चंस जो आपने छोड़ दिए हैं. So implement these things first. This is the first video. This is the basic video of reading strategies. I will make the more